Good evening to this Vishesh episode of Ek Mulaqat. Today we bring to you the living legend of Kathak dance, Padma Vibhushan Pandit Birju Maharaj and his favorite disciple Vidushi Shashwati Sen. This is an initiative of Prabha Khaitan Foundation. Prabha Khaitan Foundation does not only work in the literary and cultural spheres, but it is also working towards the empowerment of women in India and abroad. Birju Maharaj, son of Achan Maharaj, is an exponent of the Kalka Bindani Gharana of dance, and he has performed all around the world and has received many prestigious awards. But I think the awards get glorified once received by him. Vidushi Shashwati Sen, Panditji's favorite disciple, only works with him. She has taken many workshops and has performed all around the world. She is based in Delhi and teaches in Guruji's Institute, Kalashram. She has also received many prestigious awards like the Sangeet Natak Academy Award, the Critics Recommended Award, the Sanskrit Award, only to mention a few. Today interviewing them is Shinjini Kulkarni, a SAS woman from Noida, as well as she is Guruji's granddaughter and a fantastic Kathak dancer. So hope you enjoy today's evening. Thank you so much, Dona Didi, and everyone at Prabha Khaitan Foundation for organizing the wonderful initiative of Ek Vishesh Mulaqat. I have had the privilege of having a lot of informal conversations with Maharaji, my grandfather Nana, and also Shashwati Didi, because not only have I been raised in this atmosphere, but I've also had the privilege of learning from both of them. Shashwati Didi has trained me right at the beginning of my journey into Kathak, and I'm so happy to invite her today here in this webinar. Didi, thank you so much for coming, and thank you so much for blessing us with your presence. Namaskar. Thank you. I'm really delighted to be in conversation in this beautiful atmosphere. दीदी आपसे कई बारों में लोग बात करते हैं and you've given numerous interviews and talks and you've spoken at such prestigious platforms and there's this one thing that always comes up in your introduction, which is you're the prime disciple of Maharaji, which is a matter of great pride, and it is something that has become a part of your identity, absolutely. But I have a question for you. How have you ensured that over the 40 years or more that you spent in close proximity with Nana, how did you manage to make sure that your own creative voice remains very distinct and doesn't get drowned in the creative genius and the persona of Maharaji, which is always so majestic? First of all, thank you for asking this question, Shinjini, but you are a little mistaken. Last year was my 50th year with Maharaji, not 40. So yes, I was a little girl when I started learning. And actually, Maharaji is a perfectionist and he demands perfection from his students, his disciples. But at the same time, he also allows you the liberty to at least come out and grow in your own forte or your own specialization, which is dear to you. Like for me, right from the beginning, I was very keen on Abhinay, Bhav, which is my joy and my first love in Kathak. So, and Maharaji encouraged me on a lot on that, more than perhaps some other students, because he knew that he would be able to see the right kind of Abhinay in me, the way he likes it. And many times he did not even teach me Abhinay, even as though I was a student, young girl. He let me to do it, and then he would say, "तुम करो ना, खुद करो, और फिर मैं बताऊंगा जो चीज़ और उसमें अगर सजाना है." और initially I used to feel bad, नहीं मुझे क्यों नहीं आप सिखा देते हैं, तो but I did not understand कि अगर शुरू से शायद वो हर चीज़ में अगर मुझे उस तरह से सिखाए होते तो वो स्टब्ड ग्रोथ हो जाता मेरी खुद की क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, शायद वो चाहते थे कि मैं उसमें भी आनंद लूँ.
तो फिर मेरा जब of course I started touring with Maharaj ji across the globe all over. From 1973 I've been traveling with Maharaj ji. Russia was first and then America was next. So these two big, I mean, dream-like tours, which I could have never thought of. In जगहों के लिए जब when he was preparing, again he let me. अमेरिका में तो बहुत ही मजा आया था. The impresario did not want to take me. बार बार dissuade किया उन्होंने. ये इतनी छोटी बच्ची कुमुदिनी के साथ और आपके साथ इसका कोई मैच नहीं है. She is very basic. तो महाराज जी बोले आप देख तो लीजिए, आप ये अच्छी है. हम जो चीजें तैयारी दे दी कि नहीं मैं पसंद करता हूँ, चक्कर वक्कर नहीं करता हूँ, मुझे भी नहीं, तो you will like her to see that. तो I was truly very nervous. महाराज जी मुझे सिखा दिए थे, कहते थे just open up. वो जो बात है ना शिंजिनी की, उन्होंने हमको उस तरह से कभी नहीं बांधा कि बस राइट देखो लेफ्ट देखो, कहना नहीं चाहिए. मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगी, बट कुछ डांस फॉर्म्स में, कुछ और डांस फॉर्म्स में कुछ गुरु लोग हैं जो कि मतलब हंसो भी ऐसे और ऐसे, इधर देखो तो इधर ही इतना ही देखो. They put you into so much of as if it's like a taboo. तो वो महाराज जी तो नहीं करते थे. He allowed me. तो वो luckily the first program I was like almost dying of nervousness, and Beatty Gordon came behind and like first she congratulated me and hugged me, बोले I'm so sorry I underestimated you. तो उसके बाद से इंग्लैंड वगैरह महाराज जी ने मुझे जाने दिया. I teach a lot. 25 years ago I started teaching, and still now Bharatiya Vidya Bhavan in London, they love to call me and I would love to teach from there. तो वो क्रिएटिव लिबर्टी महाराज जी ने हमको दिया. तो ये गलत बात है और मैं सबको कहती हूँ कि कैमोफ्लेज तो तब इंसान होता है जिस गुरु में खुद की बढ़ने की गुंजाइश नहीं होती. हमारे गुरु तो जितना हॉरिजॉन्टली बढ़ते हैं उतना ही वर्टिकली जाते हैं. तो जब तक वो वहां जाते हैं हम लोग तब छूते छूते वो और ऊपर जाते हैं. तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ गेटिंग ओवरशैडोड बाय द गुरु. तो हर रोज हम सीखते हैं, माने एंडलेसली हम सीख रहे हैं अभी भी. तो हमारे जैसे गुरु तो शायद ही लोगों को मिलते हैं. वी आर फॉर्चुनेट, and you are more fortunate to have. No, Didi, 15 years with him, and आपने अभी बोला कि I was very nervous on my first trip. It is so hard for someone like me to imagine कि such a fabulous dancer to whom we all look up to, she could have ever been nervous to get on stage, because the moment you get on stage, it's like a tigress is on stage, and that is your personality. आप एक मिनट पेपर साइन कर रही होती है and then you get on stage and you have the whole thing in your command. I think it's a God gifted talent you have. Thank you. But it's a joy to work on all ends. It's a learning at every point. हर चीज सीखने को अच्छा मिलता है. Didi, this brings me to another question. I know that your own family background has been extremely academically inclined, and your respected father was a doctor and you had lawyers in the house. And I see that meticulous precision in the way you function at Kalashram and the way you run the whole institute also. So, cutting from there to coming to Nana and this whole atmosphere of poetry, painting, instruments, etc. Did it also ever inspire you to start writing poetry? I know of the book that you have written, which is a wonderful ode to your guru. Yeah, of course I work as an individual a lot, हर तरह से सिखाने में, कोरियोग्राफी में, परफॉर्मेंसेस में. पर हाँ, जब मैं शुरू हुई थी, I mean it was destiny, as I have been telling many people that मैं तो बचपन से as if मंत्र की तरह मेरे कान में ये बोला गया था कि जब भी कोई कहता था क्या बनूंगी, डॉक्टर बनूंगी. जैसे सारे घर में डॉक्टर्स हैं, लड़कियां लड़के सब डॉक्टर्स हैं, तो मैं भी डॉक्टर बनूंगी. जब मैं छोटी सी थी, पढ़ाई लिखाई के टाइम, yes, and I scored fairly well. तो प्री मेडिकल भी पढ़ रही थी. डांस तो it was totally a hobby, a little मतलब past time. But Reva Didi, my first guru, was so like
so dedicated and so committed in her work. और इतना वो पैशन घोल देती थी आपको काम में, और इतना जॉय इन लर्निंग जिसको कहते हैं, वो रेबा दीदी के पास हम लोगों ने सीखा था. हमारे घर में कोई मतलब संगीत नृत्य की चिड़िया भी नहीं चाहती थी, तो हम लोग तो सब मेडिकल और लॉ में. तो पर उन्होंने ऐसा, और ऑफ कोर्स मैं छोटा सा धन्यवाद करती हूँ मेरे यहाँ जो घर पे काम करते थे, मम्मी को हेल्पिंग हैंड थे, वो जोगी प्रसाद भैया कहीं गोंडा वोंडा के थे. ही यूज्ड टू प्ले अ बैंजो और क्रूड ऐसे ऐसे, और वो क्या उन दिनों तन्ने डोले मेरा मन डोले, और मैं लाइक काबुली वाला और मिनी की तरह से, मैं छोटी 3 साल की 2.5 साल की उसके आउट हाउस में मैं नाचती थी. ही यूज्ड टू पेस्टर माय मदर. अरे ये सपना सापड़ी यूज्ड टू कॉल मी, मेरा पेट नेम सपना है. सापड़ी बहुत अच्छा नाचेगी. मेरी माँ बोली तूने क्या देख लिया इसके अंदर, जो नहीं नहीं अम्मा जी इसको डालिए किसी स्कूल में. And his insistence really made my parents to go to this institute, भारतीय कला केंद्र, जहाँ शंभू महाराज जी और रेबा दीदी सब लोग. And there was a Kathak wing from where I started like late 50s में, 59 में मैंने शुरू किया था. तो रेबा दीदी के पास 7 साल सीखी, और फिर स्कॉलरशिप मिला, and I was supposed to be doing more full time seriously. तो मैं अलीगढ़ में मैं मेडिकल पढ़ती थी क्योंकि दिल्ली में नहीं मिला. शायद वो एक टर्निंग पॉइंट मेरे लाइफ में आने वाला था. तो वो अलीगढ़ में 2 साल मेडिकल पढ़ते पढ़ते इतनी मैं मेंटली फिजिकली इतनी सिक हो गई थी, लूजिंग माय फैमिली, लूजिंग माय डांस. तो मैं पापा को लड़ झगड़ के मेडिकल छोड़ के वापस आई, एंथ्रोपोलॉजी ज्वाइन किया दिल्ली यूनिवर्सिटी, और फिर डांस वापस महाराज जी के पास प्रॉपरली सीरियसली तब करने लगी. Wow. उसके बाद से अगेन इट वाज आई डोंट नो, आई थिंक शुड टॉक मोर अबाउट महाराज जी, बट महाराज जी के ही वजह से सत्यजीत दादा जब आए थे शतरंज के खिलाड़ी करने के लिए, तो उन्हें पता था महाराज जी वुड बी द मोस्ट ऑथेंटिक पर्सन टू टॉक अबाउट दोज पीरियड, नवाब दरबार, क्योंकि महाराज जी के एंसेस्टर्स वहाँ थे. तो उन्होंने मुझे कभी विज्ञान भवन में फिल्म फेस्टिवल में देखा था 2-3 मिनट, एंड द वे ही इज, उनको तो ही इज लाइक, मतलब जो चीज चाहिए वो चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज. तो महाराज जी को बोली कि वो एक लड़की थी, वो एक लड़की थी. महाराज जी ने बहुतों को दिखा दिया जो प्रोफेशनल थे. आई यूज्ड टू कम जस्ट फॉर एन आवर कॉलेज से, और बस अपने ऐसे रियाज के चली गई. तो वो बोली कोई बंगालन थी शायद, जो उसको मैंने देखा था 2-3 साल पहले देखा. तो महाराज जी बोले हाँ पर वो प्रोफेशनल नहीं है, स्टूडेंट है. बोले हाँ पर अच्छा ना दिखाइए. तो मुझे देखते ही बोले এই তো তোকে দেখেছিলাম, হ্যাঁ তুই করেছিলি বিজ্ঞান. मैंने बोला दादा, और फॉर अस तो सत्यजीत राय फॉर बंगाल इज लाइक फेंट हो जाने जैसा. मैंने कहा दादा यू रिमेम्बर. तो बस उनको तो दिमाग में था कि इससे मैं नचाऊंगा दरबार वाला डांस. तो उन्होंने कहा था तो देखना, मेरे पेरेंट्स पहले चाह नहीं रहे थे. मेरे पेरेंट्स भी मतलब, मैं बोले मुझे घर ले चलो, वो चल दी मेरे घर गाड़ी, चल महाराज जी के साथ. और मेरे पापा बोले बोला क्यों नहीं. मैंने कहा बोलने का टाइम दिया था इन्होंने, ये तो चले आए. बोले चलो घर पे, मुझे तुमसे नचाना है. तो फिर मेरे पेरेंट्स हेजिटेंट थे, तो बोले देखो मेरी फिल्म जिस दिन रिलीज होगी उसके अगले दिन से आपकी बेटी हाउस होल्ड नेम बन जाएगी, लोगों के दिलों में बैठ जाएगी. एंड ट्रूली जो उन्होंने शतरंज में मुझे प्रेजेंट किया, द मोस्ट ब्यूटीफुल वे दैट ही, माने नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग विद द क्लासिसिज्म, एकदम कथक को इन द प्योर फॉर्म, महाराज जी की भैरवी गाना बैकग्राउंड, पर लोगों को उतना ही आनंद आया जितना एक फिल्म के दूसरे टाइप के डांस में आया. ये आज भी लोग कहते हैं कि जब वो आता है तो हम लोग वी आर ग्लूड टू द टेलीविजन. संजय लीला बंसाली बोले कि शाश्वती जी आई नो यू सिंस देन, आई वाज अ फैन एंड इन लव विद यू. मैंने कहा वाह वाह, बोला क्यों नहीं था. तो यानी क्लासिकल को लेकर लोगों ने, इवन संजय जी हैज डन
miracles with Maharajji's classical work also. So Satyajit Yadav was the first to try out in his first Hindi film. So वहाँ से फिर Yes. I became more open and freer on my end. And I can confidently say that there couldn't have been another person to put that magic the way you have. And saying that, I can see Nana is completely ready. He's right here. Okay. So if I take your permission and everyone here, I Please. would like to invite Maharajji onto the camera. Nana, please, Nana. वाह महाराज जी प्रणाम. मैं तो पालागी आपको यहीं से कर चुकी हूँ पर फिर भी एक बार कैमरा के लिए for everyone who's watching us, it is almost impossible कि नाना के साथ एक formal conversation हो पाए क्योंकि वो इतने simplistic है और इतने open heart से सबसे मिलते हैं, even the people who are meeting him for the first time. To have a formal conversation and a very serious conversation is not possible. So I'll just let this flow as it goes. नाना आ चुके हैं पर मैं पहला सवाल दीदी से पूछना चाहती हूँ नाना के बारे में. दीदी आपने 50 years, I stand corrected, not 40, 50 years नाना के साथ स्पेंड किया है. एक ऐसी क्वालिटी आप बताएं नाना के बारे में जो बिल्कुल नहीं बदली और एक ऐसी क्वालिटी जो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुकी है तब से अब में. एक क्वालिटी जो बिल्कुल नहीं बदली है कि उनकी जो परफेक्शनिस्ट वाली जो डिटर्मिनेशन है कि देयर इज नथिंग कम. बस किसी भी चाहे वो गधा घोड़ा कोई भी कैसा भी डांसर हो कैसा महाराज जी को बस उसे बनाना है. और मतलब हम लोग तो कभी कभी नाराज होते दुखी होते हैं महाराज जी अब हमें तो सिखा ही नहीं रहे सालों से. बोले अरे तुम लोगों को कर दिया जो करना था अब तो टेढ़े मेढ़े हैं उनको जरा मेरा दायित्व है. सो ही हैज नेवर लुक्ड बैक और फेल्ट एनी strain or he is never tired out of teaching. और वो जो मुझे पहले दिन उन्होंने जिस डेडिकेशन से और मैं थोड़ी डर रही थी शुरू में 1-2 महीने but when he showed me सुरामा गंधारिया मेरे साथ सीखती थी एक उरुग्वे की लेडी थी and just look at her and महाराज जी क्या क्या डिटेल सिखाते थे which I never realized before. तो सोचो कि मैं तो कितनी छोटी थी और आज 50 साल हो गए. आज भी हम कांपते हैं उनके सामने क्योंकि 150 गलतियां निकाल सकते हैं महाराज जी मेरे काम में अभी भी क्योंकि यू नो दिस सत्यजीत दादा ने मुझे कहा था जब हम लोग शतरंज के खिलाड़ी का वोकल कर रहे थे. रुमा गोहरठा थी उसमें एक कोरस में और एक ठुमरी थी महाराज जी की. हम लोगों ने वहाँ शायद कम से कम 20-25 अच्छे टेक्स्ट कर लिए थे और महाराज जी हर बार कहते थे दादा एक और ले लीजिए क्योंकि थोड़ा सा मुझे लग रहा है जरा मेरा कहीं. तो जब करीब 28-30 टेक्स्ट हो गए फिर दादा मुझको बगल में लेके जाके बोले शोन वो तो परफेक्शनिस्ट वो कखनो खुशी হবে না নিজের কাজে अपने काम से भी वो कभी सैटिस्फाइड नहीं होंगे. He is analytical about everything. अपने लिए भी वो क्रिटिकल है तो वो कभी उनको तसल्ली नहीं होगी और मेरा फिल्म बनेगा नहीं तू ऐसा कर. अब हम लोग ना अगला जो अच्छा टेक होगा बेस्ट मैं तुम्हें इशारा करूंगा तुम लोग सब मिलके कहेंगे ओ दिस इज द अल्टीमेट बस इसके बाद तो हो ही नहीं सकता. एंड ट्रूली हम लोग सब जिद करके महाराज जी बोले नहीं वैसे थोड़ा सा वो आलाप में नहीं बिल्कुल नहीं एकदम परफेक्ट था. तो जो इंसान खुद के परफेक्शन पे भी नुक्स निकालता है तो वो हम लोग तो क्या ही है. वही चीज संजय जी के टाइम पे भी और माधुरी जी भी इतनी डेडिकेटेड होके देखती थी. वो भी यही कहती थी कि महाराज जी अभी तो कुछ भी नहीं हुआ और फिर महाराज जी उतने हम थक जाते थे महाराज जी नहीं थकते थे कि नहीं चलो 10 बार और करो. तो वो महाराज जी का कितना भी उम्र हो जाए आई नो टिल इवन 100 years of age he will always want to keep the best of the best in his teaching. I'll hold you to that.
I'm sorry, I'll hold you to that and I'll ask Nana. कि नाना, दीदी ने तो बता दिया आपके बारे में एक चीज जो इतने सालों में नहीं बदली, दीदी के बारे में क्या एक ऐसी चीज है जो बिल्कुल नहीं बदली है इतने सालों में? इनके इरादे और इनके जो बॉडी पे उन्होंने सजा दिया है वो अब तक वैसे ही सजा हुआ है जैसे हमने। क्या बात है। तो वो खराब नहीं हुआ, सबसे बड़ा मतलब मैं इन लोगों को कहता हूँ कि मेरे हाथ की पेंटिंग है, जो जीवित पेंटिंग होते हैं ना, जैसे कि भाई कैनवस होता है, एक जिंदा इंसान है और उसके अंदर भगवान ने तुझे सब कुछ दे रखा, लेकिन उसके अलावा जब मैंने कलर किया उसके ऊपर, वो एक मेरी कोशिश थी और उसके लिए ये बिल्कुल संपूर्ण उतरी और अभी तक ईश्वर की कृपा से वो है अभी तक वैसे। क्या बात है दीदी, इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है। नाना, मुझे दीदी ने पहले कह दिया था कि जो रेगुलर सवाल हैं जिनका आप हर इंटरव्यू में जवाब देते हैं वो नहीं पूछते, पर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहती हूँ कि एक बार हम लोग क्लास कर रहे थे, मैं भी थी और कजिन्स भी थे सब, तो आपने हमें बोला था कि तुम बच्चे लखनऊ घराना क्या नाचोगे, तुम लोग कभी लखनऊ में रहे ही नहीं। तो मैं एक चीज जानना चाहती हूँ कि कम से कम 70 साल हो गए दिल्ली आए हुए और यहाँ की रिहाइश हो गई, पर आपकी हर बात में लखनऊ का जिक्र है, तो भाषा, खाना, वहाँ का रहन सहन, हर चीज का। तो ये खुशबू कथक में तब तक नहीं आती जब तक वो माहौल नहीं जिया है। और ये तार आपने कैसे संजो के रखा है इतने सालों के बाद भी, दिल्ली में रहने के बाद? भाई आज भी तो तड़प वैसी बनी हुई लखनऊ की है और सच में यकीन मानो कि अभी भी जब भी लखनऊ के लोग मिल जाते हैं कहीं विदेश में भी, तो मैं इतना खुश हो जाऊं कि अरे तुम लखनऊ को, और उनके टोन में और बातचीत में लखनऊ झलकता है आज भी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि वो कहते हैं क्या है, हम फिदाए लखनऊ, लखनऊ हम पर फिदा और हम फिदाए लखनऊ, आसमां की क्या हिमाकत जो छुड़ाए लखनऊ। ये बड़ी पुरानी कहावत है, लेकिन सच में हम हमारे बुजुर्ग लोग, हमारा जन्म स्थान लखनऊ रहा और वो मिट्टी के अंदर वो जो मुझे लगाव है ना, वो आज भी वैसी ताजा है। और मैं कोशिश में अभी भी लगा हूँ कि लखनऊ में मैं कुछ ना कुछ काम करूँ और जाऊँ और वहाँ के लोगों से मिलूँ, वहाँ के जो पुराने लोग थे उनसे मुलाकात करके अच्छा लगता है कि उन्होंने मुझे बचपने से देखा है और बढ़ते हुए देखा। और बहुत दोस्त तो नहीं रह गए, लेकिन कुछ लोग बाकी हैं जिनसे हम मिलना चाहते हैं। और जब भी मन होता है कि मैं जाके उसी टांगा इक्के को देखूं, उसी दुकानों को देखूं, कुल्फी की दुकान इसकी अमीनाबाद खास करके और गड़बड़झाला, अमीनाबाद गड़बड़झाला, तो वो सब जो जमा हुआ दिमाग में ना, वो हनुमान जी का मंदिर, तो ये तो आज भी वो मेरे सामने बिल्कुल एक तस्वीर की तरह आज भी मेरे दिमाग में वैसे ही बना हुआ है। तो मैं लखनऊ को जब भी सोचता हूँ तो मुझे बार बार याद आती है और चाहता हूँ कि मैं जब भी मौका मिले मैं लखनऊ हवाई जहाज में बैठ के, सोचिए आप कलकत्ते जा रहा हूँ, दिल्ली से कलकत्ता, तो वो अनाउंस करता है लखनऊ से जब हम गुजर रहे हैं, तो मैं खिड़की से फौरन देखता हूँ अरे मेरा लखनऊ, यार मेरा लखनऊ जा रहा है। आज भी यदि वो कशिश बनी हुई है तो वो कभी छूट नहीं सकती, वो तो रहेगी। और तुमने बहुत सही कहा है कि उस माहौल में ना रहने वाला कथक के साथ कितना जुड़ सकता है, ये सच में कोई बात नहीं। वहाँ रहने वाला ही जो है कथक के आबो हवा को पा सकता है, नहीं तो वरना तो ठीक है, सीखना तो ठीक है, लेकिन वहाँ लखनऊ एक दफा सबको जाना चाहिए, लखनऊ की हवा खानी चाहिए, लखनऊ के वहाँ के खाना वाना खाना चाहिए, और लखनऊ सुबह को गुजर के आए तो लखनऊ कुछ तो काम करेगा। क्या बात, बिल्कुल बिल्कुल। ये दीदी मुझे याद है कि नाना हमेशा बोलते हैं और हम लोग उनको चिढ़ाते हैं बिकॉज फॉर द ऑडियंस नाना इज अ वेजिटेरियन, और हम लोग चिढ़ाते हैं कि हम टुंडे कबाब खाकर आए हैं और बोलते तुम लोग जाओ और गलत काम कर आओ खाली। पर ये तो है शिंजनी कि लखनऊ में वो जो नजाकत नफासत वाली बने आप और जनाब, और इसके अलावा तो आप बोलने में जो वो मतलब
आप दिल्ली में अरे आपका जवाब, पर लखनऊ में अरे आपका जवाब, दैट लिटिल जो एक है बात कि वो चीज नाच में आ ही जाता है, वो एक सटलिटी, एक सॉफ्टनेस, एक गुदगुदाहट आ ही जाती है। बहुत अच्छा शब्द दीदी आपने इस्तेमाल किया। बाय द वे हमारे बंगाल में भी वो है। बिल्कुल बिल्कुल। नाना, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि कई ऐसे नए बोल हैं जो आपने इजाद किए, जैसे धित्ताम धित्ताम दग दग धुम दग धुम या तकित धिम, ये वो चीजें हैं जो अब विश्व में हर डांसर, कथक डांसर नाच रहा है। तो जब बन रही होंगी ये बोल नए, तब आपने शायद नहीं सोचा होगा कि ये सिलेबस का पार्ट ही हो जाएगा, कि ये तो आपका एक अपना एक प्रयोग था। वैसे ही आपने गिनती की तिहाइयां बनाई, भाव की तिहाइयां बनाई। गिनती की तिहाइयां म्यूजिशियंस लोगों ने अपने इंस्ट्रूमेंट्स पे बजाने शुरू कर दी। तो ये जब प्रयोग हो रहा था, कि नए बोल जब बन रहे थे, तो क्या आपको ऐसा लगा था कि मैं चाचा जी से पूछ लूं या मैं किसी से कंफर्म कर लूं कि ये ठीक तरफ जा रहा है? आपने उसको पहला रिस्क कैसे लिया ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करने? मेरे ख्याल से क्योंकि हमने बचपने में जब सीखा था तो छोटे छोटे टुकड़े थे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, छोटा सा वो गिनती। मुझे लगता था मुझे बचपने में 1 2 3 4 5 6 सिखाया था, वो सिखाने के लिए शायद आसान तरीका था, क्योंकि टीड़ा टीड़ा थी टीड़ा टीड़ा थी तो बचपन में मुंह से निकलेगा नहीं, और टिकदा टिकदा थी तो जानने के लिए काफी वक्त लगेगा। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 कान कर थोड़ा सा गिनती, थोड़ा सा बोल, थोड़ा सा गिनती, थोड़ा सा बोल, वो इतना काम कर गया कि वो बचपने की वो गिनती जो थी मेरे एकदम दिमाग में ऐसे जोर से आई कि मैंने कहा अच्छा। और एक तुम्हें त्याई सुनाता हूँ बड़े मजेदार, जिसमें रायगढ़ महाराजा की बात है, रायगढ़ महाराज की। उन्होंने कल कह दिया कि महाराज आप तो सब कुछ सिखा चुके, तो अब तो कुछ बाकी नहीं रहा, तो मतलब आपके पास खत्म हो गया। तो हमारे बाबूजी ने कहा अच्छा महाराज, कहा देखो हुजूर सब कुछ सिखा चुका हूँ, 1/3 बाकी रह गए। अच्छा बाकी रह गई? हाँ, तो उनका वो बहुत तैयार मास्टर थे, कार्तिक कल्याण जो थे, कल्याण दास थे मेरे बाबूजी के शागिर्द, और कार्तिक जो थे जयपुर वालों से सीखे थे, जयलाल से। तो कहले हुजूर ये तो इतना फास्ट नाचते हैं, इतने एक दिन 1 मिनट में टुकड़ा घूम जाएंगे। दरबार लगा हुआ, और हुजूर तो जो राजा थे वो तो पैसे देते थे भाई खाने के लिए, उधर वो और उधर गुरु लोग। अब ये तो मेरा बड़े बीच में फंस गया, राजा की नहीं मानते तो खाना नहीं मिलेगा, गुरु को नहीं मानते तो नाराज हो जाएंगे, गड़बड़ हो जाएंगे। 1/3 होते खाली गिनती, मजेदार 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 अब ये 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4, तो फरमाइशी थी बाबू की मैं कि बेटा 1 2 3 4 5 6 7 1 जो है ये तो राउंड लेता है, ले 1 2 3 4 5 7 1 2 3 4 5 6 7 1 6 7 1 जो है वो 3 जैसे ही वो घूमा है दरबार में, वैसे पैर में उसके ऐसे कैंची बन गई, क्योंकि तेज घूमा तो पैर फंस गया और वो गिरा मुंह के बल। तो राजा ने कहा अरे उठा उठा, अरे बेटा फिर से कोशिश करनी, हुजूर नहीं मुझसे नहीं होगा। तो बाबू ने उसी दिन कहा राजा से सुनो अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा, हमारा तो सब चीज जो हमने कहा था 1/3 बाकी रहो कहा थी, तो बाबू ने उसी दिन रायगढ़ छोड़ दिया। क्या बात, ये कितनी गजब की कहानी है। एंड इट्स लाइक दोस ओल्ड चैलेंजेस दैट वी सी इन फेमस फिल्म्स, जो दिखाते हैं ऐसे डुएल्स जिसमें हो जाते हैं। तो दीदी आपसे मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ, एक आपकी बड़ी ही खास तिहाई है जो सिर्फ आप करती हैं और नाना ने बनाई है, एक सरदार जी और एक जापानीज की मुलाकात वाली, वो भी गिनती के ही आसपास से बनी थी। पर आई वांट यू टू, इफ आई कैन रिक्वेस्ट यू टू प्लीज रिसाइट दैट एंड टेल मी कि उसको बनाने के पीछे की स्टोरी क्या थी।
स्टोरी तो ये है कि महाराज जी को जब जो चीज अचानक दिमाग में कोई भी ऐसे अजब सी बात दिख जाती है, शायद महाराज जी ने कोई जापानीज की और सदाजी की कहीं जोड़ी जाते आते दिल्ली में रस्तों में दिखी होगी, या कहीं हॉल में आते हुए दिखी, माने समथिंग ही suddenly sees and it remains in the back of his mind and he prepares something. जिस तरह से मैं एक बार पहले तो ये बोलूंगी कि एक बार वर्ल्ड कप हॉकी चल रहा था टेलीविजन में, और हम लोग की क्लास की रिहर्सल थी, कुछ थी many years ago. तो हम लोग सब थोड़े से मतलब फिजिटी थी कि कुछ लोग वो वर्ल्ड कप देखना चाहते थे। महाराज जी आके बोले क्या बात है भाई, रियाज व्याज नहीं आ रहे, किस मूड में आ रहे हो? तो हम लोग सब बोले कि महाराज जी वो आज वो वर्ल्ड कप हॉकी बड़े हमारे इंडिया रिप्रेजेंट। तो महाराज जी बोले अच्छा देख लेंगे बाद में, अभी फिलहाल ऐसा करो हॉकी हम यहाँ खेल लेते नाच में। मैंने कहा हॉकी खेल लेते, he was not prepared, पर बोले अच्छा देखता हूँ कुछ बनाता हूँ। और वो तिहाई भी आज तक जो है ना वो इतनी बेजोड़ है, क्योंकि हॉकी इज एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गेम, एंड व्हेन आई डू इट इट्स द स्ट्रोक, द ड्रिबल एंड द गोल। ए दो तीन चार धा, ए दो तीन चार पाँच धा, ए दो तीन चार पाँच छः धा, दीदी ना दीदी ना दीदी ना दी ना दी ना दी धा। तो एक तीसरी बार में जाके दीदी ना दीदी ना दीदी ना दी ना दी ना दीदी ना गोल, यानी सम पे पहुंच गए। तो ऑडियंस मतलब वो स्कूल कॉलेज के बच्चे भी ठहाका मार के हंसते, एंजॉय करते हैं, दिग्गज लोग देखते हैं उसकी लय कितनी सुंदर कटी है। तो यही है कि जो महाराज जी ने तिहाइयों से रियली स्पीकिंग शिंजिनी आप भी शायद नहीं जानते हो या सुना ना हो, और कुछ ऑडियंस ऐसी होगी जो ये जानती ही नहीं है कि महाराज जी से पहले तिहाई चैप्टर था ही नहीं कथक में। It did not exist at all. There was no chapter as a तिहाई। वही जो महाराज जी ने कहा या तो करके तुम कति तदा तुम तदा कति, किसी बंदिश के एंड में तबले वाले करते थे, गवैया गाते थे। डांस कथक में तिहाई अलग से महाराज जी ने इंट्रोड्यूस किया, और आज आप भी जानते हो कि तिहाइयों से ही पूरा प्रोग्राम सज जाता है। एंड ऑडियंस ऐसी उसपे शायद लय की चीजों को इतने कनेक्ट नहीं होते जितना तिहाइयों में इजीली कनेक्ट हो जाते हैं, बिकॉज इट इज विद नंबर्स, प्लेइंग विद नंबर्स। तो वो गिनती तो सबको आती है भाई, ए दो तीन चार पाँच छह सात धा धती धा, वो जो बॉल आप भी शायद करते हो कभी कभी, तो वो द साइलेंस में भी जो एक टाइमिंग है, साइलेंस हैज अ मोमेंटम। तो ये सब चीजें महाराज जी ने क्या क्या सोच के, पता नहीं, he thinks modern, he thinks within his parameters of the leg, but he thinks global। पता नहीं क्या क्या चीजें उन्होंने। तो ये जो जापानीज और सरदार जी वाली है वो गिनती में नहीं है, पर इतनी मुश्किल लेग है, उसकी जो एक छोटी सी गैप है वो ही उस असर को ला देती है। दिन दिन ना ना दिन दिन ना ना दा दा दिन ता किट दा दिन दा तेरे कथा गदे गिन दा तेरे कथा गदे गिन दा तेरे कथा गदे दा दा दिन ता किट दा दिन ता तेरे कथा गदे गिन दा तेरे कथा गदे गिन दा दा दिन ता किट दा दिन ता तेरे कथा गदे गिन दा तेरे कथा गदे गिन दा तेरे कथा गदे दा। तो इसमें पहला गैप है लंबा दा दिन दा, दूसरा है छोटा तेरे कथा गदे गिन दा। तो वो महाराज जी ने पहला बोला था दिन दिन ना ना दिन दिन ना, अब गैप को भरा ओए दा दिन ता किट दा दिन हाय तेरे कथा गदे गिन दा। तो वो जापानीज की हाय अरिगतो हाय हाय, और सरदार जी की एक शान से ओए दा दिन ता किट दा हाय तेरे कथा गदे गिन दा तेरे कथा गदे है। वो केवल उस गैप का को मेंटेन करने का इतनी मुश्किल तिहाई है, तबले वाले भी सिवाय द सीनियर्स नो वन कैन प्ले इट ऑन वन गो, बिकॉज इसकी लय इतनी मुश्किल कटिंग है, पर देखने वाले हंसते हैं, मजा लेते हैं। कथक में, क्लासिकल में अगर आनंद की का एक हास्य और कनेक्ट
शिफ्टिंग विद द लय अगर किसी ने किया है तो वो केवल महाराज जी ने अपनी तिहाइयों को एक रूप देके, his tihais, all of his rhythmic composition are not oral, they are not calculative, they are visual. It's visual poetry, you see it, you don't only hear it. तो वो जो काम महाराज जी ने किया है, इतना पॉपुलराइज किया है उस बात में कथक को महाराज जी। मैं नाना के बारे में एक चीज पूछना चाहती हूँ कि नाना सोलो परफॉर्मेंस तो है ही, एक प्रस्तुति सभी पहले शुरू से ही ऐसे ही होता है, पर कोरियोग्राफी को आपने बहुत बड़े रूप में बढ़ाया है। और इसमें दो चीजें हैं, एक तो ये कि जब आप सोलो करते हैं तो सिर्फ आप स्टेज पे आ जाते हैं, तालियां गूंज उठती हैं, उसमें तो कोई बात ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। पर कोरियोग्राफी में आपकी सोच दूसरे डांसर्स पे डिपेंडेंट होती है, और तो कभी थोड़ा सा ऐसे डर लगता है कि अगर दूसरे डांसर ने गड़बड़ कर दी तो क्या होगा। तो कभी आपकी सोच को रंग भरने के लिए कभी ऐसा होता है कि आपको दूसरे डांसर की स्किल को लेके थोड़ी सी चिंता हो जाती है कि नाम तो भैया मेरा है, तो आप कैसे उसको प्लान करते हैं फिर? आने की कोशिश करके, ये सबसे पहली बात है कि उन डांसरों को मैं चुनता हूँ जिनके अंदर काबिलियत है देखने की और समझने की, और मेरी बात को समझ सके। क्योंकि ये चीज बड़े देर में पैदा होती है कि गुरु सोच रहा और शागिर्द समझ पा रहा है, ये बहुत देर में आता है, बहुत जल्दी नहीं आता है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसको 10 दफा 20 दफा तो ऐसा है नहीं तो ऐसा है नहीं तो ऐसा है, फिर हम उसको समझाने की कोशिश करते हैं, फिर तब भी ये बना रहता है कि यार ये सही कर जाए। हाँ। जो हमने कहा कि मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ कि मुझे याद है आपका एक आइटम है छंद लीला करके, बहुत ही मुश्किल आइटम है, मैंने भी दीदी इसको किया है 2 बारी, जिसमें कि पूरा रिदम विच इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड रिदम सिर्फ स्टिक्स पे रख के हम प्रेजेंट करते हैं, एंड इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट का सपोर्ट नहीं है डांस में, और इतनी खूबसूरत सोच है, बट अगर एज डांसर्स हम ऑन द स्टेज फेल हो गए तो वो पूरा परफॉर्मेंस का इम्पैक्ट कम हो जाएगा। तो मुझे याद है कि नाना थोड़ा सा हम सबको ऐसे डरा रहे थे, ठीक करना वरना बाद में मैं थोड़ा सा डांट दूंगा। तो हाँ, तो इस तरह की जो चीजें होती है ना, उसमें इस सोच को सचमुच प्रत्यक्ष रखने के लिए, सामने के लिए दिमाग में तो रहता है, फिर उसको थोड़ा रिहर्स करके समझा के देखो ऐसा है ऐसा ऐसा, और कोशिश करते हैं कि वो उस रंग में दिखाई पड़े जो हमारा विचार है। तो ये कोशिश हरदम रही। और छंद लीला के अलावा, और तुम्हें तो मालूम है शाश्वती बहुत बताएंगे, बहुत कुछ मैंने बहुत चीजें कंपोज की। और मजेदार बात है, जब एक हमारा फाइल कथा करते थे, देखिए फाइल, अब फाइल कथा में कोई न तो राधा है न कृष्ण है, मुश्किल ये कि राधा कृष्ण नाचे, कोई फाइल कैसे नाचेगी फाइल, तो मैंने फाइल को क्या किया है कि फाइल को जीवित रूप दे दिया जी। अब जीवित रूप देने से क्या हुआ कि जो हरे रंग की फाइल, पीले रंग की फाइल, नीले रंग की फाइल, उस रंग की चपरासी ला रहा रख रहा है टेबल पे साहब के, उसके साथ वो लड़की भी आ गई फाइल की तरह, तो उसके साथ गई। अब वो अपनी बेटा कहती कि जरा सा साइन कर दो, अब वो साहब कहाँ सुनने वाले, साहब तो अपने मस्त क्यों ये कर रहे हैं, वो बेचारी कह नहीं पाती। अच्छा, वो लौट जाती, लौट के रात को सब अलमारी से सब फाइलें निकल गई, और अपनी अपनी बता सुना रही, कह रहे मुझे 10 साल हो गए, मुझे 12 साल हो गए, मुझे 11 साल, आज तक एक साइन नहीं हो पाया। और खूबसूरत बात है कि ये सब कुछ प्योर कथक में प्योर कथक। हाँ, ये तो अब वो जो अभिनय है ना, अभिनय भाव उस करुणा में छुपा हुआ है, तो जो फाइलें रो रही है ना, वो उसमें छुपा हुआ है। एक स्ट्राइक किया उसमें कि वो बेचारी एक फाइल जो है वो कोशिश कर रही कि आज मेरा साइन हो जाएगा, इतने में उसने खिड़की से झांका, और झांकते क्या देखी, स्ट्राइक हो गई और जुलूस निकला। तो उसके लिए जुलूस के लिए मैं शब्द बनाया, दान देख देता देख देता देख देता देख देता, दान देख देता देख देता। ये धान देख देता देख देता जो है ना, ये प्रकार की नहीं चलेगी नहीं चलेगी, देख देता देख देता। और वो फाइल बेचारी देख रही है परेशान। किसी को बोलने की जरूरत नहीं है कि ये जुलूस ही जाने, धान दिखता देख देता देख देता देख देता, धान दिखता देख देता देख देता देख देता,
सब लोग ये कथक का मूवमेंट करते हुए जा रहे हैं, पर एकदम ऑडियंस तो ऐसे ताली बजाती थी, दिखता था कि सिर्फ खिड़की में से फिगर जा रहे थे, दिखता, एंड इट वाज रियली लाइक एज इफ देयर इज अ जुलूस गोइंग, और बोल अपने चल रहे कथक के स्टेप्स चल रहे। बाद में ये दिखाते कि वो फाइल जो बूढ़ी हो गई है, साइन नहीं हुआ, जो ट्रांसफर हो गया, जो ऑफिसर थे उनका ट्रांसफर हो गया, वो दूसरे वाले तो उनको पता ही नहीं इसी बारे में, तो वो तो और भी बेकार। तो बाद में फाइल ऐसे दिखा रहे थे, फाइल बस जो फाइल थी वो लड़की थी हमारी, और वो बूढ़ी हो गई, बाल सफेद हो गए, फाइल। अब बाद में दिखा दी फाइल फट गई, उसके पंखे हो गए, अब वो करते से बैठ। उसमें सटायर भी है, इसी के अंदर सटायर भी है। सो ब्यूटीफुल। नाना, एक चीज जो मैं आपसे और दीदी से भी मैं बात कर रही थी इसके बारे में कि ट्रेनिंग का तरीका इतना बदल गया है। जब आपने लखनऊ में तालीम पाई और अब ऑनलाइन क्लासेस तक, मतलब एक बहुत बड़ा जर्नी हो गया है, और इसमें आपने भी बहुत नए टेक्निक्स इस्तेमाल करने शुरू करे, और कोरियोग्राफी हो एक सोलो आइटम जैसा हो, चाहे फिल्मों की कोरियोग्राफी हो, चाहे पूरे पूरे बैले हो, रूपमती बाज बहादुर हुआ या कितने ही बैले किए आपने, जिसमें कि 70-80 लोग एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं। पर इन सभी का जो सोच होता है, वो सबसे पहले जब आपके मन में बीज उसका उत्पन्न होता है, उस समय एज एन आर्टिस्ट आप एकदम अकेले उसको सोच रहे होते हैं, और आप जो रूप उसको देते हैं उसी में डांसर्स आते हैं, कॉस्ट्यूम, लाइट, साउंड सब जुड़ जाता है। तो क्या आप इसमें दूसरे लोगों से डिस्कशन और इनपुट लेना पसंद करते हैं, या आपको लगता है कि मैं इसमें अकेले डूब के और कुछ निकालना चाहता हूँ? नहीं, जैसे बहुत जो क्लोज लोग होते हैं ना, कि हमारे शाश्वती 50 साल हो गए जी, बिल्कुल, ऐसे लोगों से हम बैठ जरूर कहते हैं यार मैंने ऐसे सोचा है, तुमको कैसा लग रहा है? तो उसमें उन्होंने कह दिया हाँ ये अच्छा है, तो मैं और श्योर होगा या ठीक, चलो। तो समझदार होने चाहिए, जो हमको समझ पाते हैं। तो उस तरीके जब कुछ लोग होते हैं, जैसे कुमुदनी जी थी एक टाइम पे, केशव कोठारी थे, ये लोग हम 2-3-4 बैठ जाए तो हाँ अब जरा रंग बनेगा, ये बात शुरू। तो उसमें अच्छा लगता है, जो क्लोज लोग हैं उनसे हम जरूर पूछें। तो आइडियाज का आदान प्रदान होना बहुत अच्छा होगा। जी दीदी, एक आपका एक सेमिनल पीस ऑफ वर्क है रोमियो एंड जूलियट, व्हिच हैज बीन ऑन वेस्टर्न क्लासिक लिटरेचर, एंड आपने उसको कंप्लीटली इनटू कथक प्रेजेंट किया, कीपिंग द प्योरिटी ऑफ कथक इंटैक्ट. आई वांट टू नो two things. How different is your style of choreography from Nana, and did you allow him to interfere and make changes, or did you say कि महाराज जी this is mine? जब शुरुआत, तो जैसे मैंने बोला कि सबसे पहले 1974 जब मैं महाराज जी के साथ पहली बार अमेरिका गई थी, तब ऑलमोस्ट सेकेंड नाइट पे हम लोग कार्नेगी में या किसी बड़े लिंकन सेंटर में हम लोग रोमियो और जूलियट का शो देखने गए थे, और ऐसा मैं मिसमराइज्ड हुई थी कि वो छोटी सी थी, पर क्या उसकी, देन अगेन अगर हम पढ़ते हैं लिटरेचर में, हमारे देश में शेक्सपियर पढ़ते हैं हम लोग, पोएट्स को पढ़ते हैं, वर्ड्सवर्थ पढ़ते हैं, टेनिसन पढ़ते हैं, तो इसमें बाधा क्या है? बिकॉज यही कहा जाता है कि भाव एंड इमेजिनेशन हैज नो बैरियर ऑफ लैंग्वेज। हम महाराज जी तो अदर देन हिंदी अवधि के अलावा भी काम करते हैं, कर चुके हैं बहुत। मैं टैगोर का काम बहुत कर चुकी हूँ, विद्यापति जी का कर चुकी हूँ, जयदेव की कृति, साउथ के त्यागराजा, पुरंदरदास। तो अगर लैंग्वेज एंड स्पेशली डांस बैले हैज नो लैंग्वेज, उसमें तो सिर्फ बॉडी अपना लैंग्वेज है। तो दिस वाज सॉर्ट ऑफ like a desire and a challenge that I wanted to try out on, and it took me 3-4 years to really prepare myself before I speak to
और फिर महाराज जी को जब मैंने कहा तो महाराज जी पहले तो सबसे पहले कथक में होना चाहिए, और मैंने कहा महाराज जी बिल्कुल कथक से अलावा कोई मूवमेंट नहीं होगा, पर पूरा म्यूजिक अगर आप दायित्व लेते हो तो आपसे मदद लेके मैं कोरियोग्राफी का हिस्सा में कोशिश कर सकती हूँ, बिकॉज अनलेस आई गेट द अप्रोप्रिएट म्यूजिक which is Kathak, which is classical, yet a flavor of the Shakespearean era. तो वो एक थोड़ा सा वो देख के क्या सुंदर महाराज जी ने म्यूजिक रचा है। वो बॉलरूम तुम तो कर भी चुकी हो उसमें, मतलब वो जो वॉल्ट्स का बॉलरूम का एक दादरे में जो महाराज जी ने लिया है, तो ऐसा सच में ऐसा लोगों को देख के लगता है कि बिल्कुल एज इफ इट इज अ बॉलरूम म्यूजिक, दो इट्स टोटली क्लासिकल रागा एंड अ तालम। उसी तरह से 9 मात्रा 11 मात्रा खैरवा सब कुछ महाराज जी ने ऐसे पिरोया है। सो द म्यूजिक वाज अ स्ट्रॉन्ग पिलर फॉर मी टू कंपोज माय आइटम्स, एंड फॉर मी महाराज जी को मैंने बीच बीच में एवरी टाइम आई शोड हिम जो भी महाराज जी को छोटी मोटी चीजें लगी कि शायद इसको इस तरह से कर सकते हो, और एंड ही यूज्ड टू ऑलवेज गाइड मी। रीता दी को भी मैं, रीता कोठारी जी मुझे थोड़ी सी क्रिएटिव चीजों में, तो आई वाज ओपन टू सजेशंस, बट द वर्क वाज माइन, एंड ऑफ कोर्स आई टुक all these inputs wherever I felt। तो पर ईश्वर की दया से वो बहुत सक्सेसफुल हुआ। और मतलब बम्बई में जब हम कर रहे थे तो 8 शोज थे। सितारा दीदी तो नाराज, क्या तुम महाराज जी गुरु खानदान की सत्यानाश कर रही हो, तुम इतने बैला बैली, ये क्या मतलब है बैले को, वो कहते बैला हो बैले से सब क्या कर रही हो, और वो भी अंग्रेजी आना। मैंने ऑलमोस्ट उनको किसी को कह के बॉडीली लिफ्ट करके नेहरू सेंटर में लाया गया, क्या 5 मिनट बैठ जाइए, आपके बिना नहीं होगा। नहीं मुझे नहीं देखना ये सब भूत पटाख बैला बैली नहीं देखना। तो आफ्टर शी केम, व्हेन शी सॉ इट, शी सैट थ्रू द होल 1.5 घंटा ऑफ द परफॉर्मेंस, एंड बाद में बोले नहीं इसमें तो कथक ही था, इसमें तो कोई अलग मूवमेंट दिखा नहीं। मैंने कहा दीदी बैले में भी, वेस्टर्न बैले में भी चक्कर होता है जो कि राइट का स्पिन होता है, टोज पे होता है। हमने वो नहीं किया, हमने अपना नॉर्मल लेफ्ट का स्पिन किया, हिल पे किया, और हमारे लहंगे उनके लॉन्ग स्कर्ट की तरह है, हमारे अंगरखे उनकी फ्रॉक्स की तरह है। तो there was really for us in Kathak there was not much। हमारे ये सब स्टांसेस हमारे पास है, ये सब स्टांसेस है जो उनके यहाँ भी है। फ्लेमेंको और टैप और बैले के साथ मैंने बहुत कैलिफोर्निया में, वैंकूवर में बहुत वर्कशॉप्स किए हैं, तो उन लोगों से भी मैं पूछती थी, जानकारी लेती थी, तो आई यूज्ड टू सी सो मच ऑफ सिमिलैरिटी। तो इसलिए महाराज जी, वही मैंने कहा महाराज जी कभी भी ऐसा टैबू नहीं करते, ऐसा रोक नहीं लगाते अगर उन्हें लगता है कि हमारा ये डिसाइपल सही दिशा में उसकी सोच चल रही है। सभी को, इवन फॉर महाराज जी's family, he has allowed everyone to think and breathe in their own way. I can vouch for that because कुछ साल पहले मैंने नाना से रिक्वेस्ट किया कि नाना मैं एक इंग्लिश पोएट अल्फ्रेड टेनिसन की पोएम पे कथक करना चाहती हूँ। तो मैं पहले थोड़ा डर रही थी कि पता नहीं नाना क्या कहेंगे, तो बोले हाँ हाँ करो, बिल्कुल करो। तो बोले एंड ही हिमसेल्फ सेड, खुद ही कहे कि यू नो इंडियन ऑडियंस सब लोग शायद आप ये परफॉर्मेंस लेके अलग अलग शहरों में जाओगे, सब लोग नहीं समझ पाएंगे, तुम उसको हिंदी में भी करो। और फिर उन्होंने एक क्लासिक पोएम द ब्रुक को हिंदी में ट्रांसलेट किया, जिसकी मेन लाइन थी फॉर मेन में कम इन मेन में गो बट आई गो ऑन फॉरएवर। एंड उसको उन्होंने हिंदी में किया कि कल कल करती बहती धारा, उमंग भरी में इत उत डोलूं, मेरा रूप प्रबल अति सुंदर, दिशा दिशा मंजिल को ढूंढूं। एंड वो बहुत सुंदर था, मैंने सुना था, देखा बहुत। उन्होंने उसका रस और उसका मूल हिंदी में ट्रांसलेट किया, एंड ही गेव अस द परमिशन टू डू इट इन कथक, व्हिच आई थिंक इज वेरी मैग्नानिमस ऑफ हिम आल्सो। बिल्कुल। नाना, एक आपसे बस मैं रैप अप करने जा रही हूँ, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मैंने तो आपसे बड़े
किस्से सुने घर पे कि आप तब से विदेश में कथक को और इंडियन क्लासिकल को प्रेजेंट कर रहे हैं जब शायद ही कुछ आर्टिस्ट विदेश जाया करते थे, और तब आपका फोन जी, तो कोई बात नहीं। आप वेजिटेरियन हैं और आप ऐसे देशों में जाते थे जहाँ ना हिंदी ना इंग्लिश ना शाकाहारी खाना, और ऐसे में वहाँ पे इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट की कभी आटा चाहिए कभी कुछ चाहिए, या मैंने रंगून की कहानियां सुनी है, रशिया की कहानियां सुनी है। आपको एक कोई ऐसा किस्सा जो आप किसी और कलाकार के साथ या आपके टूर में हुआ हो जो आपको कभी भूलता नहीं है कि परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छा हुआ पर बाप रे बाप क्या टूर था? हाँ, अरे वो बहुत एक्सपीरियंस तो बहुत हुए, बहुत जगह गए हम, विदेश में बहुत जगह गए, रंगून वगैरह बहुत जगह, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घटना होती रही। अब रशिया पहुंच गए तो वहाँ हो गया कि मतलब आप रशियन नहीं आता, अंग्रेजी में मेरी यस नो एक्सक्यूज मी थैंक यू, इसके अलावा अंग्रेजी में नहीं। फंस गए वहां पर, हम और गुरुजी लेट हो गए तो लिफ्ट में, अब मैंने बटन दबा दिया, रशियन में लिखा था तो मुझे कहते वो नीचे वाला दबा दो नीचे जाएंगे। अब सारे लोग चले गए, हम दो रह गए। अब उसको पार्किंग भी नहीं मिल रही बस को, और इधर दिक्कत हो, हम गुरु दोनों उतर आए। अब उसमें जैसे ही मैंने दिया तो नीचे चली गई लिफ्ट। अब ढाका तो उसमें ना तो लॉबी ना कुछ, ना शायद मैंने कहा महाराज जी होटल बदल गया, ने कहा मैं कहा गुरु जी बड़ा मामला गड़बड़ होगा, ये तो हमें अंडरग्राउंड का पता ही नहीं था उस वक्त, हमारे एक अंडरग्राउंड भी हुआ करता दुनिया में। तो उसके बाद फिर अब हम रशियन से पूछे जीना कहाँ है, तो इशारे में कि क्योंकि लिफ्ट नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर दबा दूंगा पता नहीं कहाँ चली जाएगी। ऊपर पहुंचे तो दरवाजा खुला तो खैर वही लॉबी वही सब रिसेप्शन, तो वही होटल है, वापस आ गए। बस उसके बाद तो फिर गुरु जी का फरमाइश था आटा दिलवा दीजिए। गेहूं का आटा, अब मैं तो गेहूं का आटा, तो मुझे गेहूं की अंग्रेजी नहीं आता। गेहूं का आटा पखावज में लगता है। हाँ पखावज में लगता है। अच्छा। अब वो आटा, अब मैंने कहा मैंने कहा आटा प्लीज, आटा आटा, व्हाट आटा व्हाट आटा, इंस्ट्रूमेंट इंडियन इंस्ट्रूमेंट आटा आटा, अब उसको इंस्ट्रूमेंट क्या पता आटा आटा। फिर मैं क्या किया, अब मैं बड़ा समझाने की कोशिश की, और मैं समझाने की कोशिश की कि देखो भाई तुम लोग ब्रेड, यस यू वांट ब्रेड, ब्रेड नो ब्रेड, ब्रेड नो ब्रेड, like this, no not like this, no. Bread like this, you want flower, अब फ्लावर मैंने बचपन में पढ़ा था, फ्लावर मतलब फूल। और उसमें तो गई यार, मैं फ्लावर बोला कि अब फूल लेकर आएगा, अब पता नहीं गोभी का लाया कि क्या लाया। तो जब आया, जब लौट के तो खैर वो लाया तो पुड़िया में था, तो खुश हुआ मैं, तो वो मैदे का लिया है जैसे होता है ब्रेड तो मैदा से ही, हाँ सही। अब गुरु जी महाराज इससे तो नहीं बजेगी, तो गेहूं के आटे से बचती है। गुरु जी इतने मुश्किल से मैं डबल रोटी से वापस आया, अब आप गेहूं गेहूं का भाव कैसे होगा? तो मैंने कहा गुरु जी आज तो इसी से बजेगी। अब बेचारे मजबूर चलो, अब बजा, देवों ने शिव के दिल जाकर फिर से विपत सुनाया, हर्षित हो शिव ने कुमार को सेनापति बनाया। धन दरगड़ धन दरगड़ बजाए, दरगड़ धन धन दरगड़, सारा आटा निकल गया। अब डॉक्टर साहब कंडक्ट कर रहे हैं, हम लोग हंसी आ रही, मैदा तो बहुत जल्दी सूख जाता है। अब सूख के नाक लगी थी, म्यूजिशियन की आंख किसी के। Excuse me, Shinjini, I'll be back in half a second. Right. तो बस ऐसी हालत, सब इधर देख रहे हैं, अब वो आटा उछल रहा है, वो बोल रहे आटा इकट्ठा करके पानी ऐसी गोली बना के फिर से लगाया। डॉक्टर साहब पे क्या हुआ था?
तो मैंने कहा आटा, मैदे का आटा मुसीबत हो गई। दूसरे दिन 2 किलो 5 किलो आटा मैंने बांध के लिए चलिए, गेहूं का आटा बिल्कुल हम नहीं जानते। अरे बाप रे बाप। इस तरह बहुत से तमाशे हैं। ओहो, ये गजब की कहानी है नाना, और मैं कभी भी सुनती हूँ मुझे मतलब हमेशा इसको सुन के उतना ही मजा आता है। ये ऐसा एक आपका एक्सपीरियंस रहा है दीदी। I will take a quick question and answer. If Anandita ji could place, Anandita ji, can you hear me? If you could Yes, just, we can hear you. yeah, if you could just place the first question that you'd like us to take, so that maybe Didi and Nana together can answer it. Yeah. Shinjini ji, you can see the question on the Q&A box. Right. Okay. Hmm? Okay. There's a I can't question see. from Hemal Pandey. हेमल पांडे जी, ओके। पंडित जी प्रणाम, क्या डांस सीखने की कोई स्पेसिफिक एज है? मुझे बचपन से कथक पसंद है और अब मैं 23 साल की हूँ। अननोइंगली मैं कथक पोस्चर्स बचपन से बनाती आई हूँ, बट प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली। क्या आप सजेस्ट करेंगे मेरे जैसे बच्चों को? मेरे ख्याल से देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मन अगर नाचता है, आपका मन और दिमाग दोनों के अंदर नृत्य की छवि है, तो उम्र नहीं लगती। मतलब कुछ हिस्सा मेहनत तो करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा भी मेहनत नहीं करना पड़ेगा कि उसमें बहुत हिस्से हैं ना, भाव है, ठुमरी है, भजन है, तो ऐसे वाले हिस्से भी हैं जिसमें आपको बहुत मेहनत वाला चीज नहीं चाहिए, तो बिल्कुल आप सीख सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। जैसे नाना रविशंकर जी ने, पंडित रविशंकर जी ने भी बहुत उम्र में शुरू किया था ना सीखने, तो उन्होंने भी फिर बाद में जाके तो भारत रत्न पाया। और तो आई थिंक दीदी, आई थिंक यू आल्सो एग्री विद दिस। ऑफ कोर्स, वो तो महाराज जी सदा ही कहते हैं, हम भी कहते हैं। हमारे कलाश्रम में महाराज जी के निगरानी में वी हैव ओपन्ड अडल्ट क्लास, जिसमें कि हम देखते हैं कि जूनियर से ज्यादा डेडिकेशन, सिंसियरिटी उस अडल्ट क्लास में, ये जिसने भी बोला है वो हमारे कलाश्रम में एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि हमारी अडल्ट क्लास है ही इसलिए। एंड वी हैव अ बिगर नंबर ऑफ एडल्ट्स लर्निंग देन द चिल्ड्रन, क्योंकि चिल्ड्रन का तो स्कूल, कॉलेज, ये प्रायोरिटीज, एग्जामिनेशन, syllabus, but the adults are, if they are focused, twice a week वो आते हैं, तो of course anyone can learn. Age is no bar, only physical fitness थोड़ा सा matter करता है। ठीक है, अनंतता जी, any next question that I think we can take one more. हाँ, just one more question. There is a question from Gaurav Saha. I think this is for Shashwati ji. शाश्वती दीदी, जब आपने शतरंज के खिलाड़ी में ठुमरी किया, तब आप क्या सोच कर गए थे, जो आज भी हम आपके अनोखे भाव को देखते रह जाते हैं? आई थिंक इट्स अ फैन मैसेज। थैंक यू सो मच। मैं खुद भी अपना वो पीस देखती हूँ, महाराज जी ने ऐसा सुंदर कंपोज किया और दादा ने, सत्यजीत दादा ने ऐसा सुंदर उसको शूट किया कि अभी भी वो बेजोड़ बना हुआ है। I think there's Didi, there's one quick question there from the old Sanavarian society. Yeah. मेरा वाला सवाल तो मैं आपको अलग से बता ही दूंगी, मैं तो एहसास में हुई वील की मीटिंग, बट फॉर नाना द क्वेश्चन इज, पंडित जी, एक फीमेल डोमिनेटेड प्रोफेशन में, क्योंकि मैक्सिमम कथक डांसर्स आज के टाइम में फीमेल हैं, तो एक एज अ मेल डांसर आपको क्या महसूस होता है कि कई बार कुछ एक ऐसी छवि हो जाती है कि यहाँ सिर्फ औरतें करती हैं या सिर्फ आदमी करते थे, कुछ ऐसा फर्क लगता है? तो मेरे ख्याल से जो लोग अच्छी तरह अपना लेते हैं वो पुरुष ही, अगर वो बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, ज्यादा मेहनत, लड़की से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि लड़की में भगवान ने कुछ दे रखा है अपने आप, एक सौम्यता है। तो आदमी में थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर वो मेहनत करते हैं और सब बात को समझ वो भी तो नहीं अच्छा करे। हमारे चचा वगैरह कहते थे, शंभू महाराज और लक्ष्मी महाराज, लोग कि आप हसीनों से ज्यादा 1000 गुना खूबसूरत लगते हैं बजाय हसीनों। तो आप देखिए कि ऐसी पर्सनालिटी और ऐसे लोग जिधर नजर उठा दी, ऐसा लगता है क्या नजर होगा। तो मुझे पूरा विश्वास है, लड़का भी अगर अच्छी मेहनत करेगा तो विश्वास से तो अच्छा कर सकता है।
How lovely. I think ये हम सभी के लिए सीखने की बात है. कई रूमर्स को और मिसकंसेप्शंस को डिस्पेल करता है ये बात कि it is not a male dominated profession or a female dominated profession. It's about how much you can really practice your art, upgrade your skills and surrender to your guru to be able to really do it the right way, which is the most important. Shashwati Didi and Nana, आप दोनों को कोटि कोटि धन्यवाद आज इतना समय निकालने के लिए. मुझे पता है मैंने नाना का स्लीप साइकिल भी थोड़ा सा डिस्टर्ब किया है, तो आई एम सॉरी. पर आप लोगों ने इतना समय दिया, हम सभी के साथ आप जुड़े, प्रभा खेतान फाउंडेशन के साथ आप जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. एंड I thank all the members who are here today in audience for giving us your time and being a part of this conversation. It's very special for me because नाना के साथ बैठ के इतना फॉर्मली बात करने का मौका मुझे आज तक कभी नहीं मिला. किससे सुनते हैं हम और बातें भी खूब होती हैं, पर इतना प्रोफेशनली फॉर्मली बैठना नहीं होता. So thank you to everyone. And Anandita ji, I take your permission to close the event. Yes, please. Thank you so much. Thank you, Guruji. Thank you. बहुत बहुत कामना आप लोग कामना.